Very good morning, students of class 10th. Here again, I am Poonam Prasad with the chapter Rise of Nationalism in Europe of your subject Social Science of History. Students, today we are going to deal with the topic that is new conservative, or you can say the conservative regimes and its ideology along with the revolutionaries. Students, in our earlier classes, we came across with the term liberalism, with the two aspects of political and economical liberalism. Fine. In today's class, we are going towards with the definition of conservative, or what does conservatism meant about. Students, if you are talking about the word conservatism, conservatism is a political, or you can say philosophical, stressed importance of tradition, established institutions and customs which preferred the gradual development to quick change. Children, it means that conservatives believed that established traditional institutions of the state and society, they believed in monarchy, they believed in church, social hierarchies, property and family, it should be preserved according to them. हम कहते नहीं है कि हमारे पेरेंट्स कंजर्वेटिव है. What does it mean? It means that they still believe, although they are in a modernized area, they wanted to change, but also they wanted to preserve their own traditions and values. Children, वो अपने आइडियोलॉजीज, अपने ट्रेडिशन, अपने वैल्यूज़ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. सो व्हाट कंजर्वेटिज्म मेंट अबाउट, इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी विच stressed the importance of traditions, importance of traditional values. They also wanted to establish the institutions, that is institutions which are related with the society, like state and society, like monarchy, the state, social hierarchies जो हुआ करती थी, customs and traditions, families value, इन सब को वो preserved रखना चाहती हैं. Although they realized from the changes initiated by the Napoleon, they accept the changes introduced by Napoleon, the emperor of France, and according to the conservatives, they said that modernization could in fact strengthen the traditional institutions like the monarchies. जो भी रिफॉर्म नेपोलियन बोनापार्ट के रिजीम्स में हुआ, जो उन्होंने किया, चाहे इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उन रिफॉर्म्स के वजह से कहीं ना कहीं मोनार्की जो थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, ऐसा कंजर्वेटिव्स मानते थे बेटा. सो अगर एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म्स, और वी कैन से दैट व्हाट डज कंजर्वेटिज्म वांटेड, तो आपका आंसर होगा कंजर्वेटिज्म इट डील्स विद द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, like monarchies, the church, social hierarchies, property and family, it should be properly preserved. Already I have stated. Students, most of the conservatives during that period of time, क्योंकि सोसाइटी में कुछ लिबरल्स भी थे, फ्लेक्सिबल पीपल थे, फ्री, जो सोचते थे कि सोसाइटी में इक्वलिटी हो, सोसाइटी में फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, लोगों की सोच में बदलाव होना चाहिए. एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग ऐसा सोचते थे. वो सोचते थे दैट प्रिविलेजेस बाय बर्थ शुड बी एबॉलिश. लेकिन चिल्ड्रन, कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये मानते थे कि चेंजेस होना सही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक सिनेरियो में, ये जो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक सिनेरियो में अगर चेंजेस हो गए तो वो कहीं ना कहीं देश को, कहीं ना कहीं राजतंत्र को मजबूत करेगा. बट वो ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड वैल्यूज़, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो चर्चेस से रिलेटेड हो, उसमें वो
कोई भी फेरबदल या उसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहते थे. दैट पीपल वर कॉल्ड एज व्हाट? कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे कि जो सोसाइटी है वो दोबारा से रिवोल्यूशनरीज टाइम में पहुंचे, इसलिए दे वांटेड टू एस्टैब्लिश व्हाट? कंजर्वेटिव रिजीम्स in their country, in their regions. Thus they realized what? They realized that the modernization, in fact, it strengthened the traditional institutions like your monarchy. Monarchy should be strengthened because of the changes, that changes initiated by Napoleon in terms of economic and political grounds or administrative grounds. So changes should be needed. चेंजेस होने चाहिए, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को, अपने वैल्यूज़ को हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच के साथ कंजर्वेटिव से. स्टूडेंट्स, दे वांटेड अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनामिक इकोनॉमी, एबॉलिशन ऑफ feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. It could make state power more effective and stronger. All these were the reforms conducted by Napoleon Bonaparte. So, thus we can say that the conservatives wanted to all these changes in the society because according to them, the abolition of feudalism, serfdom should ultimately strengthen the autocratic rules of your country. I've already told you about autocratic means निरंकुश, है ना? The powers are in the hands of one. निरंकुश सरकार. तो कहीं ना कहीं वो सर्वडॉम यानी कि दासत्व या जो फ्यूडल लेबरर्स होते थे उनको वो ख़त्म करना चाहते थे. वो चाहते थे रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, बट नॉट एट द पॉइंट ऑफ चेंजेस from in the values of tradition, in the values of their customs, or you can say in their old beliefs. वो ऐसा कोई भी change नहीं चाहते थे. If you are talking about the ideologies, children, the ideologies of basically, if we are talking about the ideologies of conservatives, ideologies are related after 1815. I will just tell you about that. First हम लोग एक point पढ़ेंगे कि when was Napoleon defeated and where and by whom? Students, in the year of 1804 to 1814 तक जो नेपोलियन का रिजीम रहा है, और उसके बाद 1815 के कुछ समय तक नेपोलियन हैज़ रूल्ड ओवर फ्रांस, बट एट वाटरलू बेल्जियम he was defeated by European powers, the main powers like Britain, Russia, Prussia and Austria, where in the Waterloo. बेटा वाटरलू में जब उनको डिफीट किया गया, then comes to the Treaty of Vienna, or what we call, say, the Congress of Vienna 1815. Students, 1815, let's we talk on this particular point because this question is very important. लेकिन इससे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि कंजर्वेटिव रिजीम्स क्या थे या उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या थे कंजर्वेटिव रिजीम्स के, तो लेट्स वी हैव अ वेरी क्विक ब्रीफ ऑन इट. दैट कंजर्वेटिव रिजीम्स जो कि 1815 इस कांग्रेस ऑफ वियना के बाद इस्टेब्लिश हुआ था. ये कांग्रेस ऑफ वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल, कांग्रेस ऑस्ट्रिया की कैपिटल वाज नोन एज वियना. तो वियना में जो हमारे जीते हुए देश थे, रशिया, प्रूशिया, इंग्लैंड, रशिया, प्रूशिया, इंग्लैंड, ये जब बैठकर इन्होंने एक मीटिंग किया, एंड दैट मीटिंग वाज टू Austria, that meeting was to just check out or to change the European map after the defeat of Napoleon Bonaparte.
उसके बाद ये लोग बैठे और उन्होंने अब एक कहते हैं ना रूपरेखा, यूरोप की एक रूपरेखा को उन्होंने चेकआउट किया, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने इसको बनाया. सो बिफोर दैट कंजर्वेटिव रिजीम्स क्या थे? ये कंजर्वेटिव रिजीम्स वर सेटअप इन 1815. ये ऑटोक्रेटिक रूल थे. हियर इट मीन्स अगेन द मोनार्कीज वर नाउ इन द पावर, क्योंकि बीच में रिवोल्यूशन, इस फ्रेंच रिवोल्यूशन में कहीं ना कहीं समाज में स्थापित क्या हो रहा था? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, राइट. कहीं ना कहीं देश में और यूरोप के अदर रीजन्स में प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी जैसे शब्दों को लोग डिस्कस कर रहे थे. वहीं पे कंजर्वेटिव रिजीम्स, अब वो लोग डिस्कस, लिबरल्स डिस्कस कर रहे थे, तो क्या कंजर्वेटिव्स नहीं करेंगे? यस, कंजर्वेटिव्स ने भी किया. वो चाहते थे कि सोसाइटी में दोबारा, क्योंकि जहाँ पे फ्रांस में अगर चेंजेस हो रहे तो उसका सीधा असर कहाँ पे पड़ रहा था? यूरोप के अदर नेशंस में भी. तो अदर नेशंस के जो राजा थे, राजतंत्र जहाँ पे स्थापित था, उनको तो ऑब्वियस ही बात है ना, उनको तो डर लगेगा ही लगेगा. तो वहाँ पे दे वांटेड टू जस्ट रिमेन they have a power of that monarchies over there. So conservative regimes was set up in 1815. It was ऑटोक्रेटिक थे, वो ऑटोक्रेटिक थे. वो कोई भी क्रिटिसिज्म अपने बारे में या जो लोगों का एक डिसेंट होता है, लोग नहीं मानते हैं या लोग विद्रोह कर देते हैं, उसको वो टॉलरेट नहीं करना चाहते थे. यानी कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट थी, वो कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट थी, वो कहीं ना कहीं क्या थी बेटा? वो रिप्रेसिव थी. दे वर रिप्रेसिव इन नेचर. और उन एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं इस सरकार पे क्वेश्चंस खड़ी कर देती थी, उसको वो दबा देती थी. जिसने भी क्वेश्चंस खड़ा किया उसको वो दबा देते थे. उन्होंने सेंसरशिप को लागू करा दिया. सेंसरशिप का मतलब यानी कि टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन वेयर न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स which reflected the ideas of liberty and freedom. Children, जो song, जो plays, जो लेख होता था, जो आर्टिकल्स होते थे न्यूज़पेपर में, जो कहीं ना कहीं आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी या आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी, आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम को डिपिक्ट करता था, उसको उन पर रोक लगाना शुरू कर दिया, उसको उन्होंने सेंसरशिप कर दिया. So autocratic government, it means conservative regimes has imposed what? Censorship over their and they have a control over the books, plays, newspapers, etc. Children, thus we can say that जो conservative regime से उनके ideas we have already said, or we have already discussed about that they wanted to establish the monarchical again, or monarchical rule in a country or in a regions again. Fine. Let's now we talk on what does Congress of Vienna meant in it. जो 1815 में ये लोग मिले, ये जो विजेता देश थे, जिन्होंने जीता था, जो इकट्ठे खड़े हुए थे नेपोलियन के खिलाफ, वो ऑस्ट्रिया में मिले. रशिया, प्रूशिया, इंग्लैंड एंड ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया collectively they defeated Napoleon, and they met Vienna, the capital of Austria, in 1815. Thus, children, Napoleon was defeated in 1815 by European powers Britain, Russia, Prussia, and Austria. They met at Vienna to draw up a settlement for Europe after the defeat of Napoleon. Napoleon ने जो जीता था, अब उनको उस Napoleon ने जो जीता था, उसको उन territories को अब they wanted to divide, or you can say they wanted to settle down the map of Europe. अब वो चाहते थे कि अब हम अपने तरीके से यूरोप के मैप को बदलें, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक सशक्त एम्परर था, उसके हार के बाद अल्टीमेटली वियना में वो मिलने के बाद दे वांटेड टू सेटल डाउन द geography of Europe. The Congress of Vienna was hosted. Who has hosted? Congress of Vienna was hosted by the Austrian Chancellor ड्यूक मेटरनिच. बेटा ये ड्यूक मेटरनिच का नाम आप लोग याद रखिएगा.
Fine. Treaty of Vienna 1815. It came up with many changes. बहुत सारी changes के साथ Treaty of Vienna. हम treaty को कहते हैं समझौता. Fine students, we called it as peace treaty, मतलब शांति समझौता. उसी तरह से Treaty of Vienna. बेटा आप लोगों ने कांग्रेस ऑफ बर्लिन भी पढ़ा है ना. अब दिस इज अबाउट द कांग्रेस ऑफ बर्लिन 1884, द डिवीजन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अमंग द यूरोपियन नेशंस इन आर चैप्टर नंबर 4 मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फाइन. कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका में हम लोगों ने पढ़ा. वो एक ट्रीटी थी और दूसरी ट्रीटी आपकी है. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू. The Treaty of Congress, it means the Treaty of Vienna 1815, or we also called it as the Congress of Vienna 1815. Students, it was hosted, जो एक मीटिंग थी, ट्रीटी थी, शांति समझौते पे जब इन देशों के डेलीगेट्स जो थे वो आए और उन्होंने जब अपनी बात को रखा तो उसमें उन्होंने यूरोप में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए. वो चेंजेस क्या थे? उन चेंजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था द बर्बन डायनेस्टी, किंग लुइस 16, विच वॉज बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में ख़त्म कर दिया गया था. इट वॉज अगेन यू कैन से एस्टैब्लिश्ड और इट वॉज रीस्टोर्ड टू पावर एंड इट वॉज रीस्टोर्ड इन फ्रांस अगेन. उसको वापस से रिस्टोर किया गया टू पावर. एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज़ एनिक्स्ड under Napoleon. France lost the territories which has annexed Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. यहाँ तक उन्होंने बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से, यानी वो चाहते ही थे कि राजतंत्र स्थापित हो, तो उन्होंने राजतंत्र को स्थापित किया. कहाँ? फ्रांस में. कौन सा? बर्बन डायनेस्टी. वो बर्बन डायनेस्टी जिसको कहीं ना कहीं ओवरथ्रोन किया था द पीपल ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन, है ना. फ्रेंच रिवोल्यूशन में उनको जो किंग लुइस बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया था उसको दोबारा से रीस्टोर किया इनटू द पावर. जो नेपोलियन ने जीता था, जो टेरिटरीज जीती थी, अब वो टेरिटरीज पे उन्होंने चर्चा की. फ्रांस अपने पावर्स को और ज़्यादा एक्सपैंड ना कर सके, इसके लिए उसके इर्द गिर्द स्टेट्स को सेटअप किया गया. कैसे? द series of states was set up at the boundaries, on the boundaries of France, to check the powers of France expansion in future. फ्रांस अपने पावर्स को ज़्यादा ना बढ़ा सके इन फ्यूचर. फ्रांस दोबारा से पावर में ना आए, वो अपने टेरिटरीज़ को और ज़्यादा एक्सपैंड ना करे, इसके लिए उन्होंने क्या किया? दे एस्टैब्लिश और व्हाट द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, दैट इंक्लूड्स बेल्जियम, वॉज सेटअप इन द नॉर्थ. नॉर्थ के हिस्से में उन्होंने किसको सेटअप कर दिया? किंगडम ऑफ नीदरलैंड, दैट इंक्लूड्स बेल्जियम. नॉर्थ में उन्होंने बेल्जियम के साथ नीदरलैंड को स्टैब्लिश कर दिया. जियोना को ऐड कर दिया पेडिमोंट. कहाँ पे? साउथ में. बेटा दीज आर द एरियाज, सो काइंडली गो विद इट. नॉर्थ में उन्होंने बेल्जियम विद नीदरलैंड, नीचे जियोना वॉज एडेड टू पेडिमोंट इन साउथ, नॉर्थ साउथ. प्रूशिया को नई टेरिटरीज दी गई वेस्ट में एंड सम पार्ट्स ऑफ सैक्सनी. प्रूशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, क्योंकि प्रूशिया वॉज वन ऑफ द विक्टोरियस कंट्री, तो उसको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए. एंड सम पार्ट ऑफ सैक्सनी. ऑस्ट्रिया was given control of northern Italy. ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का हिस्सा मिला. रशिया को दिया पार्ट ऑफ पोलैंड, वेयर इन द ईस्ट, यानी वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ. इस तरीके से
जो फ्रांस की पावर्स थे उसको चेक किया गया। जर्मन स्टेट्स, जो जर्मन 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था, संघों में, एक तरह से संघ थे, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैज़ बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। उसको नहीं इन लोगों ने छुआ। जर्मन स्टेट्स को 39 कन्फेडरेशन में ऐसा एज सच रखा रहा। बाकी जो भी नेपोलियन अपने टेरिटरीज को जीता था दैट वो उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। मेन एम क्या था ट्रीटी ऑफ वियना 1815 का? फर्स्ट, टू रिस्टोर द पावर ऑफ मोनार्कीज। चिल्ड्रन, पावर ऑफ मोनार्कीज को रिस्टोर किया जाए। which had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. वो चाहते थे मोनार्कीज को सेटअप करना। नेपोलियन ने जो जीता था, जो टेरिटरीज जीती थी, उन टेरिटरीज को कंट्रोल करते हुए कंजर्वेटिव पावर्स को सेटअप करना। ऑन कंक्लूड वी कैन से चिल्ड्रन, ऑल्दो ड्यू टू 1815 Treaty of Vienna was established in Europe. Why? To restore the conservative regimes. But the memory of French Revolution has inspired liberals. ऐसा नहीं कि कंजर्वेटिव रिजीम्स अपना काम कर रहे हैं, लिबरल्स शांत थे या रिवोल्यूशनरीज शांत थे। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। रिवोल्यूशनरीज शांत नहीं थे। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन ने दिया उस टाइम पीरियड में 1789 का, उसने कहीं ना कहीं लिबरल्स के मन में यूनिफिकेशन, टू यूनिफाइड, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, टू स्टैब्लिश रिपब्लिक, कंट्री शुड बी रिपब्लिक, इस तरह के तमाम आइडियोलॉजीज के साथ उनके मन में जगह बनाई हुई थी। द लिबरल्स, दे इंस्पायर्ड or they kept the memories of French Revolution in their mind. Time to time they criticized new conservative orders and they wanted, जिसमें कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्डर था कंजर्वेटिव और जो रिजीम्स का, दैट वाज सेंसरशिप ऑन द प्रेस। इट मीन्स कहीं ना कहीं दे सीज्ड आउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो कंट्रोल किया था, उस कंट्रोल जो इस कंजर्वेटिव ऑर्डर के खिलाफ ये लोग खड़े थे। Thus we can say that conservative regimes wanted the changes, administrative and economic changes in the society to strengthen the power of monarchy, but they also wanted you can say they also wanted that monarchy should be set up in every part of the Europe. Students, in this is all about the one part of today's lecture related with conservative regimes and Congress of Vienna 1815. Next video is related with revolutionaries and the contribution of Giuseppe Mazzini. So students, just watch this video because these two questions are quite important. Congress of Vienna 1815 बहुत ही ज़्यादा important है और आपके conservative regimes पे questions बहुत ज़्यादा important है. So we have the second one. Till then, take care students. Watch the video.